So, good afternoon, friends. We are starting our unit number 3, which is regarding the gravity dam and the earthen dam. The syllabus that has been there for the gravity dam, forces acting on gravity dam, etc. Its theoretical, practical profile, low, high dams, and various galleries. And regarding earthen dam, the components of the earthen dam, etc. All that some filters, failures, seepages, etc. and some tests we will try to understand. This is again the photograph of the earthen dam. Earthen dams, another name is embankment dam. Okay, embankment or earthen dam. What is it? It is built of the natural materials, constructed with low permeability soils to nominally homogeneous profile. है ना, हम अभी दोनों पार्ट में से अर्दन डैम को शुरू कर रहे हैं. अर्दन डॅम क्या है? जो मातीचं धरण आहे उसको अर्दन डॅम बोलते हैं. सिंपल सिंपल, मातीचं धरण त्याला अर्दन डॅम. फक्त एक वेळ कोणाला तरी विचारतो, स्लाइड दिसत आहे, आवाज येत आहे? Yes, sir. थँक्यू. सो अर्दन डॅम इज बिल्ट ऑफ द नॅचरल मटेरियल. नैसर्गिकरित्या जे मटेरियल उपलब्ध आहे, जसं नॅचरली काय अवेलेबल असते आपल्याला धरणाच्या साईडच्या आजूबाजूला जवळ माती. So the material available is the soil or the earth. Therefore, it is called as the earth dam. Constructed with low permeability. As far as possible, the soil used should have low permeability, so that the water will not percolate through that soil. To a nominally homogeneous profile. यानी लो परमिएबिलिटी सॉइल और होमोजीनियस यानी एक जैसे माती का बना हुआ है. होमोजीनियस के अपोजिट दूसरे टाइप का अर्दन डैम है, उसको जोन्ड प्रोफाइल करके बोलते हैं. आगे में देखेंगे हम. तो हार्टिंग जोन और केसिंग जोन ऐसा रहता है. होमोजीनियस है ना, पूरा सेक्शन एक ही माती का बना हुआ. और दूसरा जोन्ड एम्बैंकमेंट है या जोन्ड अर्थवर्क अर्दन डैम है, तो उसमें कुछ पार्ट अलग टाइप के सॉइल का है, इम्परमिएबल सॉइल का है, आउटर पार्ट जो है वो परमिएबल सॉइल का है. ठीक है. देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दिस होमोजीनियस is very important. You can see here the cross section of the earthen dam is shown. It is of the homogeneous type. On the top roadway, on the side you can see on the left side the water conserved or water retained. On the right side the downstream part. This is the downstream part. So the cross section of the dam is of the same soil, homogeneous material. This is the zoned embankment cross section, wherein you can the cross section of the dam is almost same, trapezoidal. Only central part is made up of the impermeable material. It is called as the core part, and the outer part is made up of the certain heavier material, which is called as the shell और द केसिंग. ये बीच में के पार्ट को हार्टिंग बोलते हैं और बाहर का पार्ट जो है उसको केसिंग करके बोलते हैं. क्यों देते हैं भाई ये हार्टिंग का प्रोविजन क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक साइड में ये परमिएबल है ना, सॉइल इज परमिएबल, इट इज नॉट इम्परवियस 100%. So the water on its one side will percolate through the soil, and with due time it will come out from the other side. यदि ये अच्छा वाटर टाइट नहीं रहा तो ये पानी जो इसमें से पाजरेगा वो दूसरे साइड से बाहर आएगा और वो कुछ तबाही मचाता है. ऐसा पानी यदि सीपेज तो होता ही है 100%. अर्दन डैम बोले वाटर परकोलेट्स थ्रू इट, सीपेज टेक्स प्लेस. बट ये जो सीपेज लाइन है, ये सीपेज लाइन जितनी नीचे रही फाउंडेशन की तरफ, इट इज कॉल्ड एज द फ्रीएटिक लाइन. आगे में हम और अच्छे में पढ़ने वाले हैं. इस सीपेज लाइन और द टॉपमोस्ट वाटर परकोलेटिंग, टॉपमोस्ट लाइन ऑफ द वाटर परकोलेटिंग
through the earthen dam is called as the phreatic line or the seepage line. इसके नीचे पूरा पानी, क्योंकि ये it starts from the topmost level of the water in the dam on the left side. So this is called as the seepage or the phreatic line. This line should be as towards the foundation as possible, as because this reduces the weight of the dam material due to the buoyancy, and therefore stability problems etc. takes place. In due course we will definitely understand. So therefore we provide the Harting zone or the core. So an impervious water retaining element at the center or the core of a low permeability of soil, for example soft clay or heavily remolded puddle clay or the black cotton soil, is used for this core portion or water retaining central portion impervious, and these supporting shoulders, यानी ये जो हार्टिंग है ये मेडअप ऑफ द क्ले या ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये पूरा डैम ही उसका बनाया, तो वो बरसात से वो सॉइल को कोई स्टेबिलिटी नहीं, वो बह के जाएगी। इसलिए उसको पकड़ के रखने के लिए उसको बाजू में, जिसको शोल्डर बोलेंगे, या उसके ऊपर से सपोर्टिंग शोल्डर्स ऑफ कोर्सर अर्थ फिल और रॉक फिल टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज द शेल और द केसिंग। तो हार्टिंग और केसिंग मटेरियल के बड़े बड़े डैम जो रहते हैं, लार्जर एम्बैंकमेंट डैम्स, जिसको जोन्ड एम्बैंकमेंट और टू कंपोनेंट एलिमेंट करके बोलते हैं, ठीक है। यानी डैम के, अर्दन डैम के पहला प्रकार हो गया अकॉर्डिंग टू द जोनिंग, आइदर इट इज होमोजीनियस और जोन्ड। जोन में फिर से उसमें आ गया हार्टिंग और केसिंग, ये एक हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्दन डैम। Now the another classification is dependent on the construction method. कसं बांधकाम करतात, कैसे बांधते हैं वो अर्दन डैम को, वो दो टाइप है, रोल्ड फील्ड डैम एंड हाइड्रोलिक फील्ड डैम। अब रोल फील्ड डैम यानी हरदम आप जो देखते हैं कोई भी अर्थवर्क या डैम का कंस्ट्रक्शन आपने यदि कभी देखा होगा, तो वो क्या करते हैं कि डैम का जो सेक्शन है उस हिसाब से उसकी विड्थ वगैरह मार्क करते हैं, उसके बीच में बाहर से एम्बैंकमेंट जिसको बोलते हैं वो सॉइल लाते हैं, और वो सॉइल इज लेड इन डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर में वो सॉइल को भरते हैं और उसको रोलिंग करते हैं, कॉम्पैक्ट वाटरिंग और रोलिंग करके ऊपर ऊपर जाते हैं, और उस हिसाब से वो डैम तैयार होता है, उसको बोलते हैं रोल्ड फील्ड डैम, ठीक है। जो रेगुलर, वेयर इन द एम्बैंकमेंट इज कंस्ट्रक्टेड इन सक्सेसफुल मैकेनिकली कॉम्पैक्टेड लेयर्स, द सुटेबल मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बोरो पिट्स टू द कंस्ट्रक्शन साइट by earth moving machinery, then sprayed by bulldozer, sprinkled from form layers of limited thickness having proper water content, this is very important, moisture content, and then thoroughly compacted and bonded with preceding layer by means of the power operated rollers. ये सिंपल रोल्ड फील्ड डैम जो रूटीन में हम देखते हैं। एक दूसरी मेथड भी है जो कम यूज की जाती है, वो है हाइड्रोलिकली फील्ड डैम। यानी जैसे डैम का सेक्शन है, जैसे कंक्रीट हम करते हैं, है ना, आपने कंक्रीट डैम देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, डैम का जो सेक्शन है, दैट आउटर part of that concrete centering plates are fixed, and between those centering plates the concreting is being done in the dam, gravity dam or the concrete dam. So here instead of the concrete, the wet soil, means soil mixed with the water or soil paste, is pumped into that formwork, wherein if we would have done concrete, we would have done the concrete according to, but earthwork section is being done, is being pumped, and then it is allowed to dry or evaporate, and later on the upper layers are done in this way, and later finally the dam cross section is achieved. Such dam is called as the hydraulic fill dam.
The materials are excavated, transported and placed by hydraulic methods. Flumes are laid at suitable falling gradient along the outer edge of the embankment. Flume यानी formwork. The material mixed with water, soil mixed with water at the borrow pit is pumped and washed into these flumes in this formwork. The slush is discharged through the outlets in the flumes at suitable interval along their length. The slush thus flows towards the center of the bank. The coarse material of slush settle at the outer edge, while the fine material settle at the center, and no compaction is needed. Current, it is a wet soil. It's the soil paste, so we cannot compact it. मुझे लगता है आपके ध्यान में आ गया है दोनों टाइप के डैम. रोल्ड फील्ड and a soil laid in various layers, suitable layer of 15 centimeter, 50 centimeter 50 or 30 centimeter. It is watered and compacted by the roller to get the required density. And the another is hydraulic fill dam, wherein the soil paste is made in the quarries, and that soil paste is pumped by the pipes in the formwork or the flumes, which is according to the cross section of the dam, and then that water, that soil reaches to that flume. It flows inside the flume. The central part is naturally of the finer element, and the outer part, as the heavier material moves outside, it is of the coarser type. Now rolled fill dam is again further subdivided into the homogeneous embankment dam and zoned embankment and diaphragm embankment. ठीक है, ये हमने दो टाइप तो देखे हैं, होमोजीनियस और जोन्ड. ये डायफ्राम क्या है वो भी देखते हैं. लेकिन रोल फिल डैम का ये क्लासिफिकेशन है, यानी रोलर से हम जो कॉम्पैक्ट करते हैं. ये पहला जैसे ए साइड में आपको बताया गया है स्केच में, दिस इज द होमोजीनियस टाइप. इसके नीचे में जोन्ड एम्बैंकमेंट है, और ये यहाँ पे जो राइट साइड में एक आपको स्केच दिख रहा है, ये डायफ्राम टाइप है. Zoned embankment, again the whole dam section is constructed out of the same material, same soil. Generally it is impermeable soil, जहाँ पे soil पूरी के पूरी maximum impermeable with the coarser material रहती है, durability उसको रहती है, तो वो embankment, homogeneous embankment में हम जाते हैं. यदि हमारे पास में ब्लैक कॉटन सॉइल या impermeable सॉइल भी बहुत सारी अवेलेबल है, तो we will use that soil at the center, which is called in the zoned embankment, that is hearting or the core at the center and casing or the shell at the outer part. Hearting is used as the impermeable material and casing or the shell, as the name suggests, ये हार्टिंग को केस करता है, केसिंग करता है, और ये मेड अप ऑफ द रफर मटेरियल, ऑफ द सम कोर्सर मटेरियल, so it can sustain the rains and the winds etc, erosion. And the third is the diaphragm embankment type. तो क्या होता है, बहुत बार we have the permeable material available but we don't have the impermeable material, then a diaphragm or a wall of concrete or masonry is being constructed at the middle of the dam, like the hearting zone. Only it is instead of the hearting zone with this diaphragm wall, which acts as the impermeable wall or which cuts the seepage line, is being provided all along the length of the dam. Then such dam is called as the diaphragm embankment type. ठीक है ना, यानी रोल फिल डैम में भी तीन प्रकार हो गए, होमोजीनियस, जोन्ड और डायफ्राम एम्बैंकमेंट. अभी ये होमोजीनियस हम फिर से एक बार देख लेते हैं. कंपोज्ड ऑफ द सिंगल काइंड ऑफ द मटेरियल, जनरली इम्परवियस और सेमी परवियस मटेरियल फॉर लो टू मॉडरेट हाइट. इसको कम ऊंचाई या थोड़ी सी मीडियम 5 या 10 मीटर 15 मीटर तक हाइट तक के ये प्रोवाइड करते हैं. प्योरली होमोजीनियस सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इज प्योरली होमोजीनियस सेक्शन. पूरा सेक्शन जो है ये होमोजीनियस है. जैसे इसमें है
कि ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वाटर लेवल दिख रही है ऑफ स्मॉल एच हाइट, और यहाँ से सीपेज चालू हुआ है। और ये सीपेज लाइन जो है, जिसको हमने फ्रीएटिक लाइन करके बोला है, जो डैम के में कौन सा मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड है। कौन सा यानी परमिएबल है, इम्परमिएबल है कि सेमी परमिएबल है। द सीपेज लाइन डिपेंड्स ऑन दैट। एंड एज यू नो, इट इज द टॉप मोस्ट लाइन। तो इसके नीचे में जितने जहां पे भी है तो पूरा या इधर का पानी इसमें सीपेज हो रहा है। बिलो दिस लाइन, ऑल द सॉइल बिलो दिस लाइन, below the seepage line, is submerged into the seeped water, and all the soil which is above this line is dry. Okay, you must be understanding what I mean to say. आप सब लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा होगा कि ये जो सीपेज लाइन है, जिसका नामकरण अभी हमने फ्रीएटिक लाइन करके किया, नया नाम है आपके लिए, इट इज कॉल्ड एज द टॉप मोस्ट सीपेज लाइन और द फ्रीएटिक लाइन। इसके ऊपर की जो सॉइल है, क्योंकि उसमें पानी नहीं, उसके ऊपर उसमें पानी नहीं जाता सीपेज का, वो ड्राई सॉइल है। लेकिन इसके नीचे की जो सॉइल है, क्योंकि इसमें अभी ये सबसे ऊपर की लाइन हो गई, फिर और नीचे से पानी सीपेज होगा, और नीचे से ऐसा नेटवर्क ऑफ द सीपेज वाटर विल बी देयर, एंड नेचुरली दिस वाटर विल वेट द सॉइल पार्टिकल, or I can say the soil particle will be submerged into this seeped water। और आप सब लोगों को मालूम है कि कोई भी मटेरियल पानी में जब सबमर्ज होता है तो उसका वेट कम हो जाता है ना। बायोंट वेट, बायोन्सी वगैरह आपने पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वैसा ही ये सॉइल पार्टिकल, ये जो सीपेज वाला पानी है, ये पानी में सबमर्ज होता है और उसका वजन कम हो जाता है। पहली बात, द मटेरियल, द सॉइल मटेरियल बिलो दिस सीपेज लाइन, बिलो दिस फ्रीएटिक लाइन। ओके, ऊपर का तो सॉइल ड्राई है क्योंकि पानी इसमें नहीं गया है। तो ये सॉइल पार्टिकल्स आर सबमर्ज्ड इनटू द वाटर एंड देयरफॉर देयर वेट इज रिड्यूस्ड। ये पहला, वेट कम हो गया है, वो इजीली इधर उधर थोड़ा धक्का मारा तो जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि दिस वाटर पार्टिकल विच आर सीपिंग, दिस एक्ट्स एज ए ल्यूब्रिकेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। ये जो अलग अलग सॉइल के पार्टिकल है, ये वैसे तो एक में को घर्षण से पकड़ लेते हैं, फ्रिक्शन से, but as this water enters between the two particles, this water acts as a lubricant, like the oil in your motorcycle or the grease, and this makes again these soil particles move easily। दो चीजें हो गई, सबमर्जन से, बायंट वेट से। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझा दे रहा हूँ, सीपेज का आगे में और हम पढ़ने वाले होमोजीनियस में है इसलिए। तो वो उससे क्या होता है कि उसका वेट सॉइल पार्टिकल का कम होता है। और तीसरा क्या है कि दूसरा क्या है कि वो उसका घर्षण कम हो जाता है, फ्रिक्शन, या उसको शियर फोर्स करके बोलते हैं। तो शियर फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स रिड्यूसेस ड्यू टू द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द वाटर पार्टिकल। और तीसरा और सबसे आखिरी, जिसको हथौड़ा बोलते हैं, हैमर ऑन द नेल, आखिरी हथौड़ा, वो ये कि ये जो वाटर पार्टिकल है, ये वाटर पार्टिकल को टेंडेंसी रहती है, जो सीपेज होते हैं वो धीरे धीरे इसमें से जाते हैं और आगे आगे निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पोटेंशियल एनर्जी रहती है एच हाइट के कारण। दे possess the energy due to the head of the water, and due to that energy they get the potential energy converted into the movement or the kinetic energy, and they start moving through these pores of the soil। और यदि ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है तो वो आगे 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 बढ़ते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं, पाजर के तालाब के नीचे से बाहर निकलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सॉइल पार्टिकल है, जो बेचारे हल्के हो गए हैं, जो इजीली मूव हो सकते हैं, वो धीरे धीरे वो मूव होना भी चालू हो जाते हैं। और सबसे पहले ये सबसे आखिरी का जो पोर्शन है, सीपेज लाइन और डैम एंड, यहाँ की सॉइल धीरे धीरे निकलना चालू हो जाता है ना। आगे में और पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेते हैं और फिर आगे जाते हैं इमीडिएटली। उसको सैंड बॉइलिंग करके बोलते हैं, आगे में और हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ख्याल में रखिए। तो ओवरऑल दिस सीपेज
ये मूवमेंट के कारण धीरे धीरे यहाँ पे वॉइड्स हो जाते हैं, अंदर में सॉइल पार्टिकल निकलना चालू होता है, उसको पाइपिंग करके बोलते हैं, सीपेज लॉसेस। और वो द डैम अल्टीमेटली वो सेटल होता है नीचे, और वो डैम का नुकसान होता है, कभी बह भी जाता है, टूट जाता है। So therefore we have three types of the dam, that is the homogeneous. Now the second is the core, hearting and the casing zone, and the third is diaphragm type. Only purpose is that this seepage line should, मैंने पहले ही बोला था, ये जितनी नीचे रहेगी उतना अच्छा, क्योंकि जितनी ऊपर रहेगी तो वो डाउनस्ट्रीम से निकलेगी और वो डैम को डैमेज करेगी, उसके नीचे का हरदम। अब आगे में देखिए आप, इसके नीचे इसलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सीपेज लाइन का एंड और डैम का डाउनस्ट्रीम पार्ट। तो पहले तो ये सीपेज लाइन नीचे जाने के लिए यहाँ हम फिल्टर भी देते हैं, ड्रेनेज फिल्टर इन द फाउंडेशन। इसके ऊपर में आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल है, ठीक है। मॉडिफाइड होमोजीनियस डैम। So the two types of the homogeneous, first is the purely homogeneous, second is the modified by providing the ड्रेनेज फिल्टर। फिल्टर यानी कुछ नहीं है, यहाँ पे सैंड वगैरह बॉटम में डाल देते हैं टू सम थिकनेस, ताकि ये झरने वाला पानी इम्परमिएबल टू परमिएबल के तरफ अट्रैक्ट होता है और वो अपने आप ये फिल्टर से निकल जाता है। दिस कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ सीपेज सो एज टू परमिट मच स्टीपर स्लोप्स। ये जो है स्टीपर स्लोप हो जाता है फ्लो लाइन का। और ड्रेनेज सिस्टम आल्सो कीप्स द फ्रीएटिक लाइन, अभी मैंने जो बोला, विद इन द बॉडी ऑफ द डैम। ये जो फ्रीएटिक लाइन है ये नीचे रहने चाहिए या इट शुड बी विद इन द बॉडी ऑफ द डैम। सेकंड इज द zoned embankment, we have discussed. The casing zone, outer part, it is called as the shell. It is made up of the pervious material, and the central portion which is called as the core, it is of the impervious material of the dam section. और यहाँ पे आपने देखा होगा कोर को लग के ही यहाँ पे ट्रांजिशन या एक फिल्टर है, यहाँ से सीपेज होने के बाद में यहाँ वो पानी को पकड़ते हैं with the help of providing certain sand or the filter material, and naturally this seepage line goes down, and the downstream part of the dam can be saved by the seepage problems. So zoned embankment is provided for that purpose. Casing zone, sometimes a pervious zone is provided, sometimes a semi-pervious zone is provided to serve as the transition between outer shell. It is semi-pervious zone at this joint of the core and the shell. इसके बीच में ये pervious zone करते हैं ताकि इसमें से ये that water should percolate. Also sometimes at the upstream part of the dam is made up of the pervious shell. Only way is easy movement. ये देखिए, ये actually फोटोग्राफ है डैम के क्रॉस सेक्शन का। हार्टिंग ऐसा रहता है, केसिंग बाजू में रहता है, ठीक है। और ये बाहर डाउनस्ट्रीम पार्ट है, तो ये फिल्टर मटेरियल है इधर। दिस इज द एक्चुअल क्रॉस सेक्शन ऑफ द डैम, एंड इन दिस वे, इन लेयर्स, द अर्थवर्क इज लेड, इट इज वाटर्ड एंड देन कॉम्पैक्टेड, ठीक है। एक्चुअल डैम कंस्ट्रक्शन आई हैव गॉट समवेयर नियर ड्यूरिंग माय सर्विस। नाउ द डायफ्राम embankment, as I have told you, here a outer portion or the bulk of the embankment is constructed of the pervious and a thin diaphragm of impermeable material, of impervious soil, cement, concrete, bituminous concrete or any other material. ये इसके बीच में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। Only purpose of this diaphragm is to work as the impermeable part so as to check the seepage. If the horizontal thickness of the diaphragm at any elevation is less than 10 meter or less than height of the embankment above any corresponding, the dam is diaphragm type. If the impervious earth embanked diaphragm equals or exceeds this thickness, the dam is considered zoned. और डायफ्राम में फर्क क्या है वो बताया है कि यदि ये डायफ्राम का थिकनेस यदि वो सॉइल से बनाया है तो इम्परवियस सॉइल से, एट एनी एलिवेशन इज लेस देन 10 मीटर, 10 मीटर से कम है बॉटम से लेके, तो उसको डायफ्राम बोलेंगे। और 10 मीटर से ज्यादा इसका थिकनेस या विड्थ है
तो उसको जोन्ड एम्बैंकमेंट करके बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। Advantage of this diaphragm or the zoned embankment, usually cheaper than gravity dams. Earthen dam का advantage, if suitable earth for construction is available, constructed on any type of the foundation. If there are any problem in the foundation, they can be treated, proper treatment उसको देंगे for the seepage control etc. We will see the various seepage control measures through the foundation in our discussion. It is constructed in a short period. ज्यादा स्किल्ड लेबर की जरूरी नहीं है, नो मोर स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड. एस्थेटिकली मोर प्लीजिंग देन ग्रेविटी डैम है ना. वो जो जंगल की या डैम की साइट है वहां अर्दन डैम अच्छे से फिट हो जाता है, आंखों को अच्छा दिखता है कंपेयर टू ग्रेविटी डैम और द कॉन्क्रीट डैम. एंड मोर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट देन ग्रेविटी डैम, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नॉन रिजिड रहता है तो भूकंप आया तो अच्छा है, वो अपने आप रिपेयर हो जाता है. नॉट सुटेबल, अब इसके डिसएडवांटेज है, नॉट सुटेबल फॉर द नैरो गॉर्जेस विथ स्टीप स्लोप. बहुत नदी का जो वैली है, सेक्शन है, वो बहुत कम है, बहुत उतार है, स्टीप स्लोप है, तो वहां पे अर्दन डैम कंस्ट्रक्ट करना, अर्दन डैम बांधना टेक्निकली प्रॉब्लमेटिक है. सीपेज के प्रॉब्लम वगैरह बहुत हो सकते हैं. हेड ऑफ द वाटर इज मोर, हाइट इज मोर, कैनॉट बी डिजाइंड एज एन ओवरफ्लो सेक्शन. उसके ऊपर से पानी तो हम ले ही नहीं जा सकते, तो इसलिए अर्दन डैम के साथ में हमें स्पिलवे प्रोवाइड करना ही पड़ता है. कंस्ट्रक्टेड इन रीजन्स विथ हेवी डाउनफॉल. अर्दन डैम जो है ये हम जहां पे बहुत सारी बारिश है, डाउनपोर यानी रेनफॉल, तो वहां पे वी कैनॉट गो फॉर द अर्दन डैम बिकॉज दिस रेनफॉल विल वॉश द सॉइल. Maintenance cost of earthen dam is more as compared to the gravity or the concrete dam. We can, as it is the section is made up of the earth, we cannot provide the sluices or the pipes during within the dam. An earth dam fell suddenly without any sign of imminent failure. A sudden failure causes havoc on untold miseries. है ना. बाकी डैम फेल होने के पहले कुछ ना कुछ तो भी साइन देते हैं, लेकिन अर्दन डैम दे फेल इमीडिएटली. सो वी हैव सीन द अर्थ फील्ड डैम, वी हैव सीन द हाइड्रोलिकली फील्ड डैम. वी हैव सीन अर्थ फील्ड डैम में होमोजीनियस जोन्ड एम्बैंकमेंट, पार्शियल जोन्ड, डायफ्राम टाइम्स एक्सेट्रा. You can see here at the downstream where the seepage line cuts, there we provide the stone pitching. The stone pitching acts or stone support acts as the opposing opposing wall for the due to the seepage as well as rains for the earthen dam. So you can see various cross sections of the earthen dam. Now the next part we will be trying to learn is component parts of the earthen dam and the functions performed by them one by one. So this is the cross section of the earthen dam. On the left side is the reservoir, HRL, high reservoir level, or HFL. This is the top of the earthen dam, top bank level भी बोलते हैं इसको, TBL. Between TBL and HRL or maximum water level, there is a freeboard. As I have told you earlier, the freeboard is there to accommodate the maximum wave height. ये freeboard इसलिए रहता है कि इसमें ये डैम में जो वेव्स होती है, लाटे जो तरंगे जो बनती है, उनकी हाइट काफी ज्यादा रहती है और वो आके किनारे पे धड़कते हैं और उनके धड़कने के कारण सॉइल का सक्शन और इरोजन होता है. तो उससे बचने के लिए इधर हम पिचिंग भी करते हैं और फ्रीबोर्ड भी देते हैं. और ये फ्रीबोर्ड इसलिए भी देते हैं कि एक आधे बार अनएक्सपेक्टेड फ्लड आया मैक्सिमम, तो वो फ्लड को एकोमोडेट करने के लिए फ्रीबोर्ड देते हैं, क्योंकि वी कैनॉट अलाउ द वाटर टू फ्लो ओवर द अर्दन डैम. ऊपर से पानी बहेगा तो पूरा डैम को बह के लेके जाएगा.
So this is in short the cross section of the earthen dam. Now it is shown as the zoned embankment. इसका जो central part है, which is made up of the impermeable material. That central zone of the dam is called as the core. It is made up of the impervious clay or the clay or the uh, silt, but generally it is made up of the clay, not of the silt. Mont Morillonite, clay, etc., black cotton soil, and fine material which extends from the ground level, up to the highest flood level. ये कहाँ तक कोर पोर्शन दिया जाता है? ये ग्राउंड लेवल से तो HFL तक के दिया जाता है, HFL के ऊपर में भी. Why? Because it should cut the seepage line. जो भी टॉप मोस्ट सीपेज लाइन है, फ्रियाटिक लाइन है, उसको इस कोर पोर्शन ने कट करना चाहिए ताकि दिस सीपेज लाइन विल मूव डाउनवर्ड्स. नहीं तो वो नहीं रहेगा तो इसमें से वो इट विल फ्लो फ्रॉम द टॉप. देन द शेल or the portion which is covering the core portion, because core portion is made up of the very it is made up of the clay, and this clay is susceptible to the rains, to the all erosions, okay, and also to the water which is stored on the upstream side. So to support this clay, some helmet is necessary. है ना, क्रिकेट में जैसे फास्ट बॉलिंग को खेलने को हेलमेट पहनते हैं, इन दिस वे सम हेलमेट इज नेसेसरी, सम शेल इज नेसेसरी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द केसिंग. वो केसिंग देते हैं हम ये कोर पोर्शन के ऊपर में या हार्टिंग के ऊपर में. एंड दिस केसिंग एज वी हैव कॉल्ड इट एज द हेलमेट, इट इज नॉट ऑफ द फाइनर मटेरियल, इट इज ऑफ द हेवियर और द कोर्सर मटेरियल. It is either the remains of the hard rock, hard murum, soft rock, etc. type. So shell or the casing of material coarser than the core wall and extends shoulder like, है ना, हमें जैसे शोल्डर रहते हैं बाहु भुजा, वैसे वो हमारे कोर पोर्शन के शोल्डर जैसे है, like an on either side of the core, provides structural support for the core and distributes evenly load on the foundation. तो ये इनका मेन काम है, जिसको हमने क्या नाम दिया, शेल या केसिंग, या जो हमारे कोर पोर्शन का हेलमेट है. ठीक है. अब बिटवीन दिस कोर पोर्शन एंड आवर हेलमेट और द शेल देयर इज वन फाइन थिन लेयर मेड अप ऑफ द सैंड और some small sized pebbles. रेती या जो जाड़ी खड़ी रहती है, जाड़ी रेती जो रहती है, पेबल बोलते हैं, उससे ये बनाया जाता है. जो मैंने प्रैक्टिकली आपको अभी एक सेक्शन बताया था कि हार्टिंग और केसिंग के बीच में ये, इसीलिए इसको ट्रांजिशन फिल्टर करके बोलते हैं. ये पर्पसली डैम में इसलिए दिया जाता है ताकि ये सीपेज वाला जो पानी है, ये पानी ये इसमें पकड़ा जाए, ये फिल्टर में, और ये फिल्टर को बाहर ये फिल्टर को बॉटम में जोड़ते हैं, जैसे ये इंटरनल ड्रेन वगैरह बताया है, और इसमें से ये पानी बाहर निकाला जाता है डैम के बाहर कहीं तो भी. एंड इट हेल्प्स टू सेव द डैम फ्रॉम द डैमेज ऑफ द सीपेज. ठीक है. तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन फिल्टर, located between core and the shell, or located between hearting and casing, and it prevents the migration of the fine grained material of core into the voids of the coarser shell material. In addition to filtration of the water, it also helps. यानी नहीं तो क्या होगा कि ये शेल में से फाइनर मटेरियल ये इसमें जाएंगे और शेल फिर से परवियस बनते जाएगा, तो ये क्या करेगा, पर्दे जैसा एक्ट करेगा, स्क्रीन जैसा, एंड इट विल नॉट अलाउ टू मूव द फाइनर मटेरियल
from the core into the voids of the coarser material as well as finer from the coarser to core. Then upstream blanket, ये अपस्ट्रीम ब्लैंकेट एक डैम के नीचे में प्रोवाइड किया जाता है ग्राउंड लेवल पे या रिवर बेड लेवल पे एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डैम एंड द रिवर बेड लेवल ऑन द अपस्ट्रीम साइड. ये यहाँ पे दिख रहा होगा कर्सर आपको, अपस्ट्रीम ब्लैंकेट. दिस इज आइदर मेड अप ऑफ द बिटुमिन, दिस मे बी मेड अप ऑफ द concrete, or may be made up of impermeable soil. It is at the junction of the dam and the upstream river bed level part. क्यों है ये? इसको अर्थवर्क के अंदर भी घुसाते हैं, डैम के अंदर भी इसको ये करते हैं, है ना. प्लान में देखा तो ये पूरा ऐसा लंबा दिखेगा along the width of the river, और एल सेक्शन में देखा तो along the length of the river. वो इसलिए कि यहाँ से भी धरण का जो पानी स्टोर्ड है वो जमीन में फाउंडेशन में परकोलेट होके फिर से डाउनस्ट्रीम में सीपेज से निकले ना. फॉर दैट पर्पस दिस अपस्ट्रीम ब्लैंकेट इज प्रोवाइडेड. इट इज a layer of impervious material, usually clay, laid out at the natural ground level on upstream side. It increases the path of percolation to reduce the seepage pressure. बाद में कट ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डैम है. कट ऑफ वॉल बोलते हैं इसको, या सीओटी भी बोलते हैं, कट ऑफ ट्रेंच करके बोलते हैं, कट ऑफ ट्रेंच, सीओटी. यू मस्ट बी सीइंग ऑन योर स्क्रीन, कर्सर से मैं बता रहा हूँ. इट इज एट द बॉटम ऑफ द कोर. डैम का जो हार्टिंग पोर्शन है और डैम का जो फाउंडेशन है, इसके बीच में ये कट ऑफ रहता है. व्हाट इज इट? ये डैम के फाउंडेशन में पहले एक्सकवेट करते हैं टू सम विड्थ एंड टू सम बॉटम, टॉप विड्थ एंड बॉटम विड्थ एज द ट्रेपेजॉइड शोन हियर. और उसको एक्सकवेट करके इट इज फिल्ड विथ द इम्परवियस मटेरियल ऑफ विच द कोर इज मेड, so that there should be as minimum seepage as possible through the foundation of the dam. So cutoff is a fairly impervious barrier formed in the center of the base of an earthen dam by extending the core into the foundation to the depth where impervious stratum is reached. ये कहाँ तक डेप्थ तक देना है कि जब तक नीचे में इम्परवियस स्ट्राटा ना लगे, हार्ड रॉक या मुरुम जैसा, सॉफ्ट रॉक जैसा, तब तक ये कट ऑफ देना है. As the cutoff tries to check the flow of water and increases the path of percolation, suitable where foundation is incapable of resisting under seepage, है ना. इसलिए कभी तो भी हमने डिस्कस करते वक्त पहले बोला था कि अर्दन डैम ये ऐसे फाउंडेशन पे देते हैं जहां कोई दूसरा डैम नहीं दे सकते. परमिएबल स्ट्राटा रहा तो भी चलता है, कोई हार्ड रॉक ही चाहिए ऐसा नहीं है, कोई सॉइल के ऊपर भी देते हैं. क्यों? एक तो वो इकोनॉमिकली सस्ता रहता है, उसमें लोकल अवेलेबल मटेरियल यूज कर सकते हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि फाउंडेशन में ये कट ऑफ जैसी ट्रीटमेंट देने के बाद में हम ये फाउंडेशन की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं और सीपेज भी कम कर सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द अर्दन डैम एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ द कट ऑफ. तो कट ऑफ क्या है? सीओटी, कट ऑफ ट्रेंच. फर्स्ट एन एक्सकवेशन और ट्रेंच, इट्स नेम इज ट्रेंच, नाली. तो कट ऑफ ट्रेंच यानी एक नाली काफी अच्छे टॉप विड्थ की, कोर का जो बॉटम विड्थ है वो उसकी टॉप विड्थ रहेगी, और उसकी जो डेप्थ रहेगी दैट डेप्थ विल डिपेंड ऑन द इम्परमिएबल स्ट्राटा इन द फाउंडेशन. फाउंडेशन मध्ये जोपर्यंत इम्परमिएबल स्ट्राटा, तो कशाला पाहिजे की त्याच्यामधून काही पाणी झिरपून जायला नको म्हणून, तर तिथपर्यंत याला खोल खोदायचं ही नाली, आणि ही नाली मधली माती पूर्ण काढून त्याला नंतर बाहेरून कुठून तरी ब्लॅक कॉटन सॉइल किंवा कोणती तरी इम्परमिएबल क्ले आणून त्याला लेयर मध्ये भरायचं आणि कॉम्पॅक्ट करायचं. that is called as the COT, and after this COT is filled, then the remaining work of the dam is being taken out above the ground level. ये COT कहाँ पे है? ग्राउंड लेवल के नीचे में. कहाँ है? ये फाउंडेशन में. बहुत इंपॉर्टेंट
कंपोनेंट ऑफ द डैम है सीओटी, कट ऑफ ट्रेंच करके बोलते हैं। उसके बाद में इंटरनल ड्रेन एक रह गया है। ये ड्रेन यानी जैसे यहाँ पे क्या है, जो फिल्टर्स रहते हैं, वो फिल्टर में जो सीपेज का पानी जाता है उसको बाहर निकालने के लिए ये नालियां रहती है। These are called as the internal drains. These are connected with the filters, and this helps in taking out the seepage water or filtered water either through the transition, filter transition, or through the foundation, and is being taken out of the body of the dam. Such drains are called as they carry away any seepage which penetrates the core of the cut or the cutoff wall, cutoff trench, or prevents the saturation of the upper part of the downstream shell caused by rainfall. It requires protective filter to prevent the carrying of fine particle, etc. etc. ये प्रोटेक्टिव फिल्टर बनाया जाता है। इसको इसमें कोर में की फाइनर सॉइल जाए ना, इसलिए सम फिल्टर मटेरियल आल्सो प्रोवाइडेड। टो ड्रेन है ना। अभी ये टो ड्रेन डैम के दो पार्ट होते हैं। ये जो डैम है धरण, इसका जो अपस्ट्रीम पार्ट है, कौन सा भी धरण, मे बी ए ग्रेविटी डैम, मे बी अर्दन डैम, इसका जो अपस्ट्रीम बॉटम पार्ट है ना, जो मैं कर्सर बता रहा हूं, इसको हील करके बोलते हैं, है ना। हमारा पैर जैसा रहता है, हम हाई हील चप्पल या शूज पहनते हैं ना, तो जो डैम का अपस्ट्रीम पार्ट है, कंसिडर दिस डैम एज योर लेग and the upstream part of that leg or the upper portion of that leg, जिसको हील बोलते हैं, हम हमारे शूज पहनते हैं तो उसको हील करके बोलते हैं। और हमारे पैर का जो आगे का पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं, टो। तो वैसे ही डैम का जो डाउनस्ट्रीम पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज द टो इन ए डैम, मे बी ए अर्दन डैम, मे बी ए ग्रेविटी डैम। ठीक है ना। आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट अभी ध्यान में आ गया होगा कि डैम का हील कौन सा है और डैम का टो कौन सा है, क्योंकि ये बहुत बार आगे में आने वाला है, हील एंड टो। यू मस्ट हैव गॉट व्हाट इज हील एंड व्हाट इज टो अकॉर्डिंग टू आवर लेग। हमारे पैर में जैसे रहता है कि हील पोर्शन इज द बैक पोर्शन एंड टो इज द फ्रंट पोर्शन, तो ये डैम का जो टो पार्ट है, ये टो पार्ट में भी ये ड्रेन प्रोवाइड की जाती है। ड्रेन काय की रहती है, ड्रेन इज अगेन लाइक ए नाली प्रोवाइडेड in the within the body of the dam, and within this nali or in drain some it is made up of the percolated material only to arrest or collect the seeping water. तो ये जो टो में जो प्रोवाइड करते हैं उसे टो ड्रेन करके बोलते हैं। ठीक है। सो टो ड्रेन इज प्रोवाइडेड एट द डाउनस्ट्रीम टो and serves same purpose at the internal drain. It is made up of the graded filter. फिल्टर मटेरियल है, अलग अलग टाइप के फिल्टर यानी कोर्सर मटेरियल, मे बी सम स्मॉल बोल्डर, स्मॉल रॉक्स, एग्रीगेट्स, है ना, कंक्रीट की जो गिट्टी रहती है एग्रीगेट, और द पेबल्स, लार्ज साइज सैंड और द कोर्सर सैंड, इससे ये टो ड्रेन और फिल्टर बनाए जाते हैं। रिप रैप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डैम का, रिप रैप। ये रिप रैप, इसको दूसरा वर्ड है स्टोन पिचिंग, है ना, कहीं तो भी नोटबुक में ख्याल में रखिए, रिप रैप, इसका नाम है स्टोन पिचिंग। ये क्या काम करता है, ये डैम एज इट इज मेड अप ऑफ द अर्थ और द सॉइल, है ना, आइदर अपस्ट्रीम पार्ट, हील पार्ट और द डाउनस्ट्रीम टो पार्ट, एज इट इज मेड अप ऑफ द सॉइल और द क्ले, it is susceptible to get damaged due to the upstream water stored in the dam. It is susceptible to get damaged due to the waves in the dam. It is susceptible to get damaged due to the heavy rains and the winds etc. मैं हिंदी में फिर से रिपीट करता हूं, ये डैम सॉइल का बना है, माटी का बना है, इसके अपस्ट्रीम में पानी स्टोर्ड है, तो ये पानी के कारण ये माटी डैमेज हो सकती है,
ये पानी में जो लाटे, जो तरंग बनते हैं बड़े बड़े, वो ऊपर नीचे बहते हैं, आगे में आते हैं, उसके कारण ये सॉइल डैमेज हो सकती है, सक्शन हो सकता है इसका। और बाद में बरसात का भी बहुत सारा पानी आता है, तो उसके कारण भी ये सॉइल का इरोजन हो सकता है। और बाद में धूप और हवा रहती है, तो उसके कारण भी ये सॉइल बह जा सकती है, उड़ जा सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये ऐसे ना इरोजन हो, इसका डिस्ट्रक्शन ना हो, इसलिए उसके अपस्ट्रीम साइड में और डाउनस्ट्रीम साइड में अप टू सर्टन हाइट some stones are laid, or stones are provided for the protection of this earthwork. This stones protection is called as the riprap. It is also called as the stone pitching. So it is the protection provided to the sloping banks, generally upstream and sometimes downstream of the dam, to protect the slopes from the action of the waves. है ना, जो पानी की वेव्स है, लाटाएं हैं, कैटल जो जानवर कभी घूमते हैं, बारिश, रेन्स, they are called as the riprap. They comprise of the 60 centimeter to 1 meter thick stone pitching. इसको स्टोन पिचिंग भी बोलते हैं। ऑन 30 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल, 30 सेंटीमीटर के ग्रेवल के ऊपर में ये स्टोन पिचिंग दिया जाता है। सोड, एसओडी, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द ग्रास, है ना, बस 1-2 मिनट लेते हैं, 5 मिनट। इट इज सोड इज द टाइप ऑफ द ग्रास ग्रोन ऑन द डाउनस्ट्रीम स्लोप to protect against the rainwash caused by the heavy rainfall and thereby prevent formation of the gullies on the slope. ये सोड यानी जैसे ग्रास का टर्फिंग करते हैं हम, जैसे हमारे कॉलेज में ग्रास का घास नीचे बिछाया हुआ उसका टर्फिंग है, तो डैम के डाउनस्ट्रीम के स्लोप के ऊपर ये टर्फिंग किया जाता है। घास का, घास लगाया जाता है आर्टिफिशियली, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बारे जो स्प्रेड होने वाला जो हमारे बगीचों में रहता है वैसे, ओनली टू प्रोटेक्ट द डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ द डैम फ्रॉम द इरोजन ड्यू टू रेन्स एक्सेट्रा, क्योंकि ये घास क्या करेगा, ये बहते हुए पानी को पकड़ लेगा नीचे। दे आर कॉल्ड एज द एसओडी सोड। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फाउंडेशन फॉर द अर्थ डैम्स। अर्थ और एम्बैंकमेंट डैम्स के लिए फाउंडेशन की गरज क्या है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट। इट प्रोवाइड स्टेबल सपोर्ट। फाउंडेशन का क्या काम है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाउंडेशन? इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल सपोर्ट फॉर द एम्बैंकमेंट अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ सैचुरेशन एंड लोडिंग। ये जो फाउंडेशन है, जो डैम के नीचे में या कोई भी स्ट्रक्चर के नीचे में है, व्हाट इज डज, इट हेल्प्स टू ट्रांसफर द लोड ऑफ दैट स्ट्रक्चर, in our case the dam, to the soil in the bottom, in the foundation, as well as it gives the stable support for embankment under any condition of saturation and loading. ये जो फाउंडेशन है, ये स्टेबल सपोर्ट इसको रोके रखता है, ये माटी को, ये खुद नहीं फेल होता, तो उसको अच्छा फाउंडेशन बोलेंगे। अंडर सैचुरेशन, क्योंकि अभी इसमें से पानी परकुलेट होने वाला है, और कोई भी लोडिंग में, मैंने आपको बताया पानी परकोलेशन और सीपेज क्या प्रॉब्लम करता है इनटू द सॉइल। ड्यू टू द बायोन्सी फोर्सेस, इट रिड्यूसेस द वेट ऑफ द सॉइल, इट एक्ट्स एज ए ल्यूब्रिकेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, सो इजी मूवमेंट, शियर फोर्स रिड्यूस होता है। और तीसरा, ये खुद भी ड्यू टू द conversion of the potential energy into kinetic energy, it also moves forwards till it has the energy, है ना। हमारे में जब तक एनर्जी है तब तक हम दौड़ते रहेंगे या चलते रहेंगे। जब हम थक जाएंगे, हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो हम एक जगह पे खड़े रहेंगे। वैसे सॉइल पार्टिकल का है कि उसको यदि पानी ढकलते रहेगा, उसमें से पानी जाते रहेगा, सीपेज, ड्यू टू द हेड अवेलेबल ऑन द अपस्ट्रीम, तब तक वो पानी, वाटर विल परकोलेट इनटू द सॉइल, इनटू द सीपेज विल टेक प्लेस, and along with the percolating water, soil particle will also move. But if this energy finishes, the water will be there, it will not move forward, or the soil particle will also be there.
but this energy depends on the upstream potential energy or head of the water. So the foundation acts as a impermeable material. Also, it transfers the load. It provides sufficient resistance to seepage, that is impermeability, to prevent the piping. ये क्या है पाइपिंग, आगे में हम देखते हैं, थोड़ा मैंने आपको समझा दिया. And excessive loss of the water. Generally, the foundations are grouped in three classes according to the predominant characteristics. First is the rock foundation. यानी अच्छा स्ट्राटा, हमें रॉक यानी इम्परमिएबल स्ट्राटा है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है. जनरली रॉक फाउंडेशन अवेलेबल है, क्रॉस सेक्शन डैम का कम है तो वी गो फॉर द ग्रेविटी डैम. लेकिन ऐसा नहीं है कि वी डोंट गो फॉर द अर्दन डैम. फॉर अर्दन डैम ऑल्सो रॉक फाउंडेशन आर वेलकम. Pervious foundation, sometimes in the foundation we don't get rock, we don't get impervious foundation, तो फिर कट ऑफ प्रोवाइड करते हैं. तो परवियस फाउंडेशन भी चलता है, और इम्परवियस फाउंडेशन नॉन परकोलेटिंग फाउंडेशन रहा तो वेरी गुड. So here we will take the stop today, and next time we will start with this foundations in continuation.